Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing very well. Today is 15th of July and day is Wednesday. We are going to start a new chapter, chapter number 2, input and output devices. Objective of this chapter is that student will able to know about types of devices and student will able to differentiate between input and output devices. So what are input and output devices? I hope you all have seen different parts of computers, different devices of computers which are attached to the computers. For example, keyboard and mouse, they are normally used to enter data. Monitor, you can see the monitor, and processing unit is used to process the data, and many other different devices of computer like printer, scanner, microphones. So you all are familiar with such kind of devices of computer. So basically we are going to learn about input and output devices. So what is the difference between input and output devices? Input devices are those devices through which we can enter data and instruction into a computer are called input devices. वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर रहे होते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस दे होते हैं. फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड से जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है. सिमिलरली हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसके थ्रू, जैसे माउस के थ्रू हम क्लिक कर रहे होते हैं, यानी हम लोगों का माउस इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है आपके कंप्यूटर को कि इस चीज़ को खोलना है, तो आपके क्लिक करने पर वो चीज़ खुल जाती है. तो सच काइंड ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस to the computer are able to do with input devices, and output devices are those devices through which we can see output from a computer are called output devices. और output devices वो devices होंगे जिसके थ्रू हमें output मिलता है, चाहे वो हम लोगों को डिस्प्ले की सूरत नज़र आने की सूरत मिले या हमें साउंड की सूरत मिले या हमें कोई हार्ड फॉर्म में मिले. जैसे प्रिंटर के थ्रू हमें जो चीज़ मिल रही होती है वो हार्ड फॉर्म में मिल रही होती है. हम मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट मिल रही होती है वो हम लोग आंखों से देख रहे होते हैं, वो साइट के थ्रू हो रहा होता है. एंड सिमिलरली जो हम लोग म्यूज़िक सुन रहे होते हैं थ्रू स्पीकर्स, वो हम लोगों को हेयरिंग के फॉर्म में मिल रहा होता है. सो आउटपुट कैन बी इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज़ इन रिटन फॉर्म और हार्ड फॉर्म और इन साउंड फॉर्म. So input devices, we are going to learn about different types of input devices we are using. Number one, keyboard. This is very common example of input devices, and it is used to enter data and text into a computer. It has keys similar to the typewriter. पहले ज़माने में टाइपराइटर होते थे, उस पर भी इतने ही नंबर ऑफ़ कीज़ लगी होती थी और वो भी राइटिंग के लिए और टाइपिंग के लिए यूज़ होता था. और नाउ डेज कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग. Mouse is another common example for input devices. It has mostly 2 or 3 buttons. A central wheel button is called scroll wheel, and left button and right button. So basically the function performed by mouse is click, double click or right click. And what is the function performed by mouse is to select object and text, or we are also use mouse for drawing pictures on the computer. This is a trackball, exactly or similar to the माउस. बिल्कुल माउस की तरह होता है ये, बस डिफरेंस ये होता है कि माउस को हम मूव करते हैं और हम लोग उस पर क्लिक कर रहे होते हैं, बटन को प्रेस कर रहे होते हैं और हम लोग का काम परफॉर्म होता है. जबकि हम लोग के ट्रैक बॉल में ये होता है कि हमें ट्रैक बॉल को हिलाना नहीं पड़ता, बल्कि इसके ऊपर एक छोटा सा व्हील टाइप बटन होता है जिसके ऊपर हम लोग अपनी फिंगर रखकर मूव करते हैं. हम इसको जिस भी अपनी फिंगर को जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे वैसे ही पॉइंटर जो है आपकी स्क्रीन के अंदर मूव करेगा, लेकिन आपने इस ट्रैक बॉल को खुद से नहीं हिलाना. ओके, सो नेक्स्ट डिवाइस इज joystick. This is most common input device used by children, क्योंकि ये गेम्स के लिए यूज़ होती है, प्लेइंग गेम्स की तरह यूज़ होती है. ये गियर की तरह होती है, जैसे आपने गाड़ी के अंदर गियर लगा होता है, बिल्कुल ये उस तरह होती है. ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करता है. जैसे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और उनको अपने प्लेयर को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं या बाएं मूव कराना होता है, तो वो इसकी मूवमेंट के साथ करते हैं और ये बहुत ईजी टू कंट्रोल होता है.
और इसके ऊपर टॉप पे बटन लगे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फायर करना है, आपने कोई भी और जो है एक्शन या फंक्शन परफॉर्म करना है तो आप उन बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। अब कीबोर्ड भी आपका गेम्स खेलने के लिए यूज़ हो सकता है, आप भी वहाँ से राइट लेफ़्ट टॉप और बॉटम ये सारे मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जॉयस्टिक मोस्ट कॉमनली क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इजी टू कंट्रोल होता है, आपको आपके हाथ में होता है, आपको कहीं देखना नहीं पड़ रहा होता, आपको सिर्फ अपने हाथ से डायरेक्शन को हिलाना होता है और चेंज करना होता है और ये इजीली यूज़ हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट डिवाइस इज़ लाइट पेन। ये बिल्कुल पेन की तरह होता है, बिल्कुल पेन वाली शेप में होती है। आप इसको पकड़ते हैं, अपनी टचेबल स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की, लैपटॉप की रखते हैं और आपने कुछ भी ड्रॉ करना होता है, आपने कोई भी चीज़ क्लिक करनी होती है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अ लाइट पेन कैन बी यूज टू सेलेक्ट एन ऑप्शन ऑन द स्क्रीन बाय सिंपली पॉइंटिंग एट इट। इट इज़ मोस्टली यूज बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स। ठीक है, ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के काम के लिए यूज़ होता है, इसलिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर और डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अभी हम लोग 4 ऐसी डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स और लाइट पेन। ये चारों के चारों डिवाइसेस कहलाते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करने या कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, द नेक्स्ट आवर इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। आपको यहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही है, स्कैनर कुछ टोस्टर की तरह की शक्ल में होता है। आप इस स्क्रीन के अंदर दरमियान में आप पेपर रखते हैं और आप इसकी लिड को बंद कर देते हैं। उसके बाद आप स्कैन का बटन प्रेस करते हैं, जो भी आपने पिक्चर इसके अंदर रखी होती है वो एज इट इज़ स्कैन करता है और वही पिक्चर कॉपी करके आपके कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्कैनर विच अलाउ यू टू स्कैन एंड ट्रांसफर द फोटो और हैंड रिटन पिक्चर और टेक्स्ट इनटू योर कंप्यूटर। Webcam or web camera is a camera attached to a computer, और कुछ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर ये बिल्ट इन फॉर्म में होता है, यानी आपकी स्क्रीन के साथ अंदर की तरफ अटैच होता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेबकैम? वेबकैम टेक अ सीरीज ऑफ पिक्चर विच कैन बी viewed on a computer. These images can be transferred through the internet to another user and it is most commonly used for video chatting और video conferencing. आज के दौर में जब क्वारंटाइन चल रहा है तो ऑफिसेज की और ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी मीटिंग्स परफॉर्म हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हैं, वो थ्रू कंप्यूटर हो रही हैं और वहाँ पर हम लोगों का सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिवाइसेस यूज़ हो रही थी वो वेबकैम टाइप हो रही होती हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपने सामने बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और अपनी मीटिंग्स परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज डिजिटल कैमरा। आपको डिजिटल कैमरा नज़र आ रहा है, ये सिंपल कैमरा है, ठीक है। डिजिटल कैमरा क्यों होता है? क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में, ये कंप्यूटराइज में, ये पिक्सेल्स की फॉर्म में पिक्चर लेता है आपके कंप्यूटर के अंदर। आप इसको इजीली ट्रांसफ़र करते हैं, एडिट करते हैं और सिर्फ ये पिक्चर लेने के लिए काम नहीं करता, बल्कि ये वीडियो विद साउंड भी रिकॉर्ड करता है। एंड अ फोटो टेकन इन डिजिटल फॉर्म कैन बी व्यूड एंड प्रिंटेड इमीडिएटली। इसका फ़ायदा में क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर में पिक्चर डालते हैं और हम लोग डायरेक्ट प्रिंट की कमांड देते हैं, हम अपनी पिक्चर प्रिंट कर लेते हैं। अब इसकी बैक व्यू आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है एलईडी स्क्रीन। सो व्हाट इज एलईडी? एलईडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड दिस स्क्रीन इज यूज्ड टू व्यू द इमेजेस। आप जो भी पिक्चर खींचते हैं आपको वो फॉर इमीडिएटली आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आई थी कि वो किस तरह की खींची है, आपको अच्छी लग रही है, आप उसको रखते नहीं, अच्छी लग रही है आप उसको डिलीट करते हैं सिंपली। एंड अब इसका हमें कैमरे का क्या फ़ायदा है? इट स्टोर द इमेजेस इन अ स्मॉल मेमोरी डिवाइस। द इमेजेस कैन आल्सो बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर। आप चाहे इस कैमरे की मेमोरी के अंदर इमेजेस देखें अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दें। ओके, द नेक्स्ट input device is microphone. Microphone is used to input and record voice, sound and music into a computer. आपने कोई भी किसी भी फॉर्म की वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में डालना है तो आपको उसके लिए जो डिवाइस चाहिए वो है माइक्रोफोन। ठीक, अब माइक्रोफोन आजकल बहुत से ऐसे हार्डवेयर्स कंप्यूटर जो है क्या कहते हैं कंप्यूटराइज्ड जो है डिवाइसेस में यूज़ होता है, जिसमें वॉइस रिकग्नाइजेशन यूज़ हो रही होती है, यानी जिसमें आपकी वॉइस जो है रिकॉर्ड होती है, रिकग्नाइज की जाती है। आप कोई भी अपने वॉइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो काम परफॉर्म होता है।
तो माइक्रोफोन ऐसी जगहों पे यूज़ हो रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस अब कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिससे हमें आउटपुट मिलता है. आउटपुट मिलता है, ठीक है. आपको अपने स्क्रीन पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले होता है. फॉर एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मॉनिटर विच इज़ कॉमनली यूज्ड and it is also called VDU, visual display unit, similar to a TV screen, and it can display both text or pictures, as well as the output you get on a computer is called soft copy. Speakers. Speakers are used to play music and sound from a computer. Simply जो आपको sound अपने computer से सुननी है वो आप किसके through करते हो? Speakers के through. Headphones are also called earphones. They are used to listen to music or sound from the computer with other people hearing it. ठीक है, आप इससे क्या विदाउट अदर पीपल हेयरिंग इट, इसका फ़ायदा ये होता है कि साउंड आपको बिल्कुल स्पीकर की तरह सुनाई तो दे रही होती है, लेकिन कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो आपको पर्सनली सुनाई दे रही होती है. वो आपके कानों पे लगाते हैं, डायरेक्ट आपको ही आवाज़ आ रही होती है. कुछ हम लोग के हेडफोन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आगे माइक्रोफोन भी अटैच होता है, और ऐसे हेडफोन्स कहलाते हैं हेडसेट, क्योंकि इसके अंदर बोथ हेडफोन और माइक्रोफोन होता है. एंड सच काइंड ऑफ डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. Projectors. Projector display the output on a screen. The screen can be a whiteboard or white cloth or even a plain whiteboard. A projector used for class teaching, giving presentations. अब आपको सामने नज़र आ रहा है एक टीचर जो है प्रेजेंटेशन दे रहा है वाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है. अब कैसे आपका ये प्रोजेक्टर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. आपके कंप्यूटर के अंदर उस वक्त जो भी स्क्रीन खुली होती है, जो भी प्रेजेंटेशन खुली होती है, वो एज इट इज़ उसको लेता है सॉफ्ट फॉर्म में, और उसको बीम के थ्रू जो लाइट निकल रही है उसके थ्रू वो आपको सामने डिस्प्ले करवाता है. एंड दिस वे यू कैन ईजीली शो अ प्रेजेंटेशन और डिस्प्ले अ प्रेजेंटेशन ऑन अ बिग स्क्रीन. Printer. A printer delivers the output on a paper. The printed copy that we get from the printer is the hard copy. जो soft copy के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? The output that we get on a monitor is called soft copy, and the printed copy that we get from the printer is called hard copy. जो भी हमें कंप्यूटर प्रिंटर से आउटपुट मिलती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है. वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट, हम कोई भी अपने कंप्यूटर के अंदर जो काम किया हुआ है हम चाहते हैं वो पेपर पे हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए, हम कमांड देते हैं और हम लोग प्रिंटर के थ्रू ले रहे होते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट प्रिंटर्स एंड लेज़र प्रिंटर्स. डिफरेंट नेम्स हैं इनके, इनके डिफरेंट इंटरनल जो है क्या कहते हैं वर्किंग प्रोसीजर है, इस वजह से इनके डिफरेंट नाम हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड exercise, and before that if you are confused in any topic, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है you can freely ask me by voice message, or these exercise questions you have to solve by yourself. A device used to take the output on computer. कौन सी डिवाइस यूज होती है आउटपुट लेने के लिए कंप्यूटर से? ठीक है, ऑन अ पेपर, प्रिंटर, मॉनिटर, जॉयस्टिक और नन ऑफ दीज. An input device used to take video with sound and still photographs. अब कौन सी इनपुट डिवाइस थी जो स्टिल जो है क्या कहते हैं फोटोग्राफ्स लेती थी, वीडियो और साउंड भी? प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर और नन ऑफ दीज. It reads and scans text and pictures directly into the computer. जो आपके कोई भी टेक्स्ट को और जो है पिक्चर को रीड करके डायरेक्टली वही चीज़ आपके कंप्यूटर के अंदर ले जाती थी, वो कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर या प्रिंटर या स्कैनर. विच ऑफ दीज इज पॉइंटिंग डिवाइस? इनमें पॉइंटिंग डिवाइस कौन से हैं जो सिलेक्ट करने के लिए चीज़ या पॉइंट करने के लिए यूज़ होते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर. The output on a monitor is called soft copy, hard copy, printout.
This is your written work you have to do on your notebook. Number 1, differentiate between hard copy and soft copy. You can get answer from page number 13 and 12. What is an output device? Name any two devices. पेज नंबर 12 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा. List 4 different pieces of computer hardware found in your school computer lab. आप कंप्यूटर लैब में गए हुए हैं. 4 different type of computer hardware आपने वहाँ कौन से देखे? पहले तो आप उनके नाम लिखेंगे. Are they all essential components? क्या वो सब ज़रूरी components हैं कंप्यूटर के? आप इसका बताएंगे yes और no में आंसर. Justify your answer. उसके बाद आप खुद अपने जो है वर्डिंग में लिखेंगे कि ये ज़रूरी अगर हैं तो क्यों हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्किटेक्चर इज डिज़ाइनिंग द फ्लोर प्लान ऑफ अ हाउस. वो एक फ्लोर प्लान आपका जो है क्या कहते हैं बना रहा है, डिज़ाइन कर रहा है. विच डू यू थिंक इज़ द बेस्ट इनपुट डिवाइस टू यूज़ फॉर दिस टास्क. अब आपके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है कंप्यूटर के अंदर, फ्लोर प्लान को. अब उसके लिए वो कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस यूज़ करेगा जो बेस्ट होगा, उसको डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा. विल ही नीड मोर देन वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस. और क्या उसको सिर्फ एक ही जो है इनपुट डिवाइस चाहिए होगा डिज़ाइनिंग के लिए, या इस प्रोसेस में उसको कोई और इनपुट डिवाइस भी चाहिए होगा. सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट डिवाइसेस. Camera are often an integral part of computer, especially a laptop or handheld devices. अगर हम लैपटॉप और हैंड हेल्ड डिवाइसेस में देखें तो इंटेग्रल पार्ट यानी उसके अंदर बिल्ट इन पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर कैमरा. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैविंग कंप्यूटर विद इन कंप्यूटर. अब आप इसका फ़ायदा या नुकसान बताएं कि अगर कंप्यूटर के अंदर ही अटैच्ड है आपका कैमरा तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है और उसका क्या नुकसान हो रहा है. गिव एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर रिस्पॉन्स. ठीक, इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि देखें अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको अपनी जो है साथ में डिवाइसेस लेकर जानी है. अगर आपका कैमरा आपके लैपटॉप के अंदर ही है और आपने अपना लैपटॉप उठाया और ले गए तो ये आपको ज़्यादा आसानी लग रही है या आपको इस बात में आसानी लग रही है कि आपका जो है वेब कैम अलहदा से हो, डिजिटल कैमरा अलहदा से हो और आपने वो अपने कंप्यूटर को के साथ जो है ना डाल के लेकर जाना है. ठीक, अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपने पूरे सराउंडिंग की जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करें. अब उसमें आपको बिल्ट इन कैमरा जो आपके लैपटॉप है उसकी मूवमेंट करनी आसानी होगी, या आपने अपने हाथ में वेब कैम को उठाएं और उसको आप मूव करें और पूरे जो है क्या कहते हैं रूम के का सराउंडिंग को रिकॉर्ड करें. तो अब आप अपने आंसर को जस्टिफाई करके इजीली लिख सकते हैं. तो होप आई विल गेट योर होमवर्क एज सुन एज पॉसिबल. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.